Good morning, sir. Good morning, Stanita. Okay, we will talk about this today. Hopefully, we will be uh, able to complete the catalysis. Anyway, so to start with, if you remember, I have told you yesterday there are few things which differentiate a enzyme catalyst from the regular catalyst, and regular catalyst means either it homogeneous catalyst or the heterogeneous catalyst, mostly synthesized in the lab. So I told you three or four points. You just have to remember how the enzyme catalysts are different from the homogeneous and heterogeneous catalyst. The number one point is the enzyme catalysts are highly efficient in comparison to homogeneous or heterogeneous catalyst. They are highly sensitive towards pH and temperature, and also they are highly selective. I have given you an example just like ureage, which convert urea into ammonia and carbon dioxide. That urea hydrolysis can be stopped if you will do a small or minute change in urea. So that means they are highly selective, they are highly specific, highly sensitive towards pH and temperature, and highly efficient. These are the things which will differentiate an enzyme catalyst from the homogeneous and heterogeneous catalyst. Like I told yesterday, the enzyme catalysts are much bigger molecules, so it is not feasible to find out the mechanism of the enzyme catalytic reaction. But a theoretical calculation can help you to find the rate of the enzyme catalyzed reaction. And the theoretical calculation was given by an equation by two scientists. One's name is Michaelis and the other one is Menten. So it is combinedly called as Michaelis-Menten equation in deriving the rate of a enzyme catalyzed reaction. So we will talk about that today. That is the equation which will help you to find the rate of a enzyme catalyzed reaction. Okay, we'll start from here. All good? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. So you see in the first step, it is written as E plus S giving you ES, and the next step is ES giving you P plus E. We need to understand every term. Okay, so we usually say S is giving you P. What is S? S is a substrate, or we also can call them as a reactant, and P is the product. So this is the total reaction happen. S giving you P. That means a substrate is getting converted into the product. Okay, that is the general general reaction which would be catalyzed by enzyme. So the E is basically stands as enzyme, or you can also call them as C. In some of the books, you still can find it as C. C means catalyst. S is the substrate or the reactant, and when they combine they form ES. We call it as an intermediate. Okay, and in the next step the intermediate converted into product, and it will give you the enzyme back. This is also a reversible reaction. So both of the reactions are reversible. Okay, in one line if I'll write E plus S giving you ES,
and the ES is giving you E plus P. So as you can see, the rate is written as K1, K1 dash, K2 and K2 dash. So the total reaction virtually happening is S is getting converted into P. That means substrate is getting converted into the product intermediate which is formed in between. Okay. Now for enzyme catalyzed reaction, this is the step which is the rate determining step, RDS, and we know that the slowest step is always known as the rate determining step. So if this will the rate determining step where the ES, that means the intermediate, is getting converted into the product, so the rate of the reaction will be K2 into ES. Okay, इस चीज को ध्यान में रखना, किताब में भी है, अभी सुन लो, बाद में देख लेना. Now what we have to remember is there are 4 rate which is described for 4 reactions. पहला reaction क्या है? E plus S giving you ES and the rate will be K1. As it is a reversible reaction, so the reverse reaction will be ES getting converted into E plus S and the rate will be K1 dash. Similarly, ES getting converted into E plus P, remember E is the enzyme, P is the product, the rate will be K2 and the reverse reaction will be K2 dash. Okay, so we can say easily that the rate of formation of ES, this is the first step, and the rate would be K1 into concentration of E into S. That is the reaction which is written over here. Similarly, the rate of decomposition will be K1 dash into concentration of ES. Rate of decomposition of ES will also be K2 into concentration of ES. ठीक है ना, एक एक करके रिएक्शन को देखो. पहला स्टेप में ES फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में ES कंजप्शन हो रहा है. दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब पहला स्टेप में ES फॉर्म भी होगा और वो कंज्यूम भी हो सकता है. सेकेंड स्टेप में ES कंज्यूम होगा और वो फॉर्म भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने नहीं लिखा है. क्या नहीं लिखा है? K2 डैश का कोई मेंशन नहीं है. K2 डैश कौन सा रिएक्शन होता है? वो होता है E, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, E प्लस P गिविंग यू ES, जिसका रेट हमने बताया K2 डैश. इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है. क्यों नेग्लेक्ट कर दिया है? वो इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया है कि इस रिएक्शन का मतलब क्या है? इस रिएक्शन का मतलब है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और कैटलिस्ट सेपरेट हो गया, वो फिर से हमें इंटरमीडिएट बना के देते हैं. ओके, द बैक रिएक्शन हैपेंस. लेकिन अगर वो बैक रिएक्शन होता रहेगा तो तुम्हारी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. मतलब जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हो गया वो फिर से इंटरमीडिएट दे दिया. इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट टू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, वो अगर साइमल्टेनियसली चलता रहेगा तो फिर तुम्हारी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. उसको कहते हैं टेक्निकली दैट द रिएक्शन विल नॉट कंप्लीट और इट विल नॉट गो टू कंप्लीशन. तो अगर किसी भी रिएक्शन कंप्लीट होता है उसका मतलब एक बार प्रोडक्ट जो बन गया वो फिर से तुम्हें इंटरमीडिएट नहीं बना के देता है. इसलिए हम इस स्टेप को नेग्लेक्ट करेंगे. ठीक है, पहले एक चीज ध्यान में रखना, रेट ऑफ द कैटालाइज्ड रिएक्शन इज बेसिकली K2 into ES, क्योंकि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप होता है. ठीक को हमें निकालनी है. उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ES की कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा. अब तक क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े. ठीक है, ओके. उसके मतलब ये देखो लिखा हुआ है, एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ES. उसके मतलब क्या है कि जितना ES हमारा इंटरमीडिएट है, जितना इंटरमीडिएट बन रहा है वो सारा का सारा कंजप्शन हो रहा है.
ठीक है, उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। मतलब स्टेडी स्टेट में ईएस का फॉर्मेशन और ईएस का कंजप्शन सेम हो जाता है, जितना बनेगा इंटरमीडिएट उतना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, एट स्टेडी स्टेट वी कैन कॉल डी कंसेंट्रेशन ऑफ ईएस बाय dt इज इक्वल टू 0। मतलब with time the concentration of ES is not changing. How much ES will be formed? All of them will be decomposed forming the product. ठीक है, सो अगर DES by DT is equal to 0 हो जाएगा तो अभी हमको देखना है ES बन कहाँ रहा था। पिछले स्लाइड में जाओ, ठीक है ना। ES के लिए 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन ES बन रहा है, तीसरा इक्वेशन ES कंजप्शन हो रहा है, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस में, और तीसरा इक्वेशन में भी ES कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, किसी कोई भी डाउट हो बीच में पूछ लेना मुझे। सो K1 इंटू E इंटू, मैं यहाँ पे ये रिएक्शन लिख देता हूं ताकि बार बार हमें जाना नहीं पड़ेगा पीछे। सो द रिएक्शन वाज बेसिकली E plus S giving you ES giving you E plus P। ठीक है, ये K2 K1 है, ये K1 डैश। एक रिएक्शन मैंने लिखा नहीं है, कौन सा रिएक्शन मैंने लिखा? गिविंग यू इंटरमीडिएट बैक, जिसको मैंने बोला कि उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, दिस वन, वो मैंने लिखा नहीं। तो ये टोटल रिएक्शन है। तो इसमें हमको ES, अगर हम कहेंगे कि DES बाई DT इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या लिखना है? देखो, K1 into concentration of ES, that is the formation of ES, क्योंकि स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन इज इक्वल टू डिकम्पोजिशन, should be equal to K1 dash into concentration of ES plus K2 into concentration of ES। को अगर हम जोड़ के लिखते तो वो लिखते K1 into concentration into S minus K1 dash into concentration of ES minus K0। माइनस साइन क्यों देते? Because those reactions in which ES is getting consumed. The first reaction ES is generating, though both the second and third reactions in which the ES is getting consumed। ठीक है, तो ये लाइन तक समझ में आ गया? यस सर। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट होगा तो बीच में यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे हम? ES की कंसेंट्रेशन निकालेंगे। सो ES का कंसेंट्रेशन विल बी K1 डिवाइडेड बाय K1 डैश बाय K2, क्योंकि हम इसको ये लिख सकते हैं ES की कंसेंट्रेशन multiplied by K1 dash plus K2 is equal to K1 concentration of E into concentration of S, है ना। तो ES क्या हो जाएगा? K1 डिवाइडेड बाय K1 dash plus K2 into concentration of ES, और इसी को कहते हैं मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या है? Km इज इक्वल टू K1 डैश प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। तो ये हो गया 1 बाय K1 और ऊपर चला गया कंसेंट्रेशन ऑफ E इनटू S। इसी स्टेप में पहले जब ये रिएक्शन डेवलप हो रहा था, मतलब ये जो रेट निकालने के लिए जो थ्योरी डेवलप हो रहा था, उसको पहले स्लाइड में चले जाओ। हमने क्या कहा? रेट इज इक्वल टू K2 इंटू ES। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन न्यू इक्वल टू ES का कंसेंट्रेशन? अगर हमने ये निकाल दिया तो इट शुड बी K2 कंसेंट्रेशन ऑफ E
multiplied by concentration of S divided by Km। जब पहले रिएक्शन का रेट निकल रहा था तो यहीं पे निकाल के छोड़ दिया, बाद में पता चला कि ये इक्वेशन सही नहीं है। ये इक्वेशन क्यों सही नहीं है वो मैं बताता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो E क्या है, E इज द एंजाइम, S क्या है, S इज द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ES क्या है, ES इज द एंजाइम व्हिच टेक पार्ट इन द रिएक्शन प्रोसेस। सो बाद में पता चला कि दिस कैन नॉट बी ट्रू because the concentration of the enzyme which was taken for the derivation of the equation was actually the free enzyme। फ्री एंजाइम का मतलब जितना एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए उतना। अब कोई पूछ सकता है सर आपने पहले बताया था कि एंजाइम अगर कैटलिस्ट है यहाँ पे तो फिर कैटलिस्ट का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो रीजनरेट होता है। वो सच है, रीजनरेट होता है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ठीक है। उसकी मतलब ये नहीं है कि उसकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से अगर तुम सोचोगे कि कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन के लिए कितना कैटलिस्ट लगेगा वो पहले से तो हमको पता नहीं होता है ना। तो किसी भी रिएक्शन करने के लिए मान लो हमने 1 मिलीग्राम का कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो क्या वो सारे 1 मिलीग्राम के कैटलिस्ट यूज हो जाते हैं? नहीं होते। कुछ यूज हो जाते हैं, कुछ कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, कुछ नहीं होता है। उसके लिए एक दूसरा चीज भी है जो इजीली तुमको बता सकता है कि उसका कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होमोजेनियस कैटलिस्ट जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन शुड रीजनरेट। अगर रीजनरेशन में उसका कंसेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो ये रीजनरेट होता जाएगा और रिएक्शन साइकिल चलता जाएगा। उसके मतलब ये हुआ कि एक कैटलिस्ट किसी एक रिएक्शन को इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक कैटालाइज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। सारे कैटलिस्ट का साइकिल आइदर 5, 10, 15, 20, 25 मतलब उतनी तक ही वो कैटलाइज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को। उसके बाद हमें फ्रेश कैटलिस्ट देना पड़ता है। इसलिए कोई भी जब कैटलिस्ट हम सिंथेसिस करते हैं लैब में तो वो कितनी साइकिल तक एक्टिव रहता है वो भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके मतलब ये है मोटा मोटी कि उसका रीजनरेशन तो होता है और जो रीजनरेशन होता है वो वही कंपाउंड होता है, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसके कंसेंट्रेशन में चेंज आता है, ठीक है। इसलिए ये जो ई हमने इस स्टेप में कैलकुलेट किया दैट वाज बेसिकली द फ्री एंजाइम। तो इसलिए the equation needs to be modified how we say E is equal to E total is equal to the initial concentration of enzyme which was given for the reaction। if that would be the case then E would be the free enzyme, मतलब रिएक्शन के बाद इतना एंजाइम फ्री बच गया, और ES is the amount of enzyme which actually combine with the substrate to form the product। that means this is the concentration of enzyme which take part in the reaction। so in that case your free enzyme will be the total enzyme given minus the enzyme which took part in the reaction process। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? कोई कुछ पूछना चाहता है अब तक? Just give me 1 minute, somebody is knocking at the door, then I will come back, I will ask you, okay? नहीं सर मैं ना बोलती।
Okay, I'm back. Anybody wants to ask anything? कहीं तुम लोग भी तो नहीं चले गए? सर जैसे Yes, यहाँ sir. पे ये लिखा है एस टोटल, हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर एस टोटल में जो एस जब हमने रिएक्शन बिगिन किया मतलब टी इज इक्वल टू 0 में एस, तो ये ई एस को हमने नेग्लेक्ट मान लिया सर, लेकिन जब ई टोटल निकाला तो यहाँ पे मतलब ई एस पे E2 कहाँ है? सर ई टोटल E टोटल जो है एंजाइम टोटल है। हाँ, एंजाइम टोटल is equal to enzyme which remained free plus the number of enzymes which take part in the reaction. और क्या पूछ रहे थे, मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ऊपर एस टोटल निकालने में तो हमने ई एस को नेग्लेक्ट कर दिया सर। नहीं नहीं, नेग्लेक्ट किसी को नहीं किया। हमने ये बोला है कि मान लो किसी भी एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो जब रिएक्शन होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन जैसे होता है, तो जैसे हमने ये रिएक्शन लिखा है तो टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू एस गिविंग यू पी, है ना, एस इज इक्वल टू सबस्ट्रेट, या फिर हम कहते हैं कि आर गिविंग यू पी, आर इज इक्वल टू रिएक्टेंट। तो जो एस की कंसेंट्रेशन है, ये सबस्ट्रेट की या फिर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है, इनिशियल में मान लो 100% है, लेकिन क्या कोई केमिकल रिएक्शन में 100% यील्ड मिलता है? इन 100% यील्ड किसी भी रिएक्शन में नहीं मिलता। 100% यील्ड का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट बना, वो फिजिबल नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो वो फिजिबल कभी भी नहीं होता, इसीलिए तो पर्टिकुलर रिएक्शन की यील्ड कैलकुलेशन करते हैं। कोई 70% यील्ड दे रहा है, कोई 50% यील्ड दे रहा है, कोई 5% यील्ड दे रहा है, कोई 95% यील्ड दे रहा है। तो किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन की एफिशिएंसी उस हिसाब से तय होता है कि प्रोडक्ट कितनी मात्रा में फॉर्मेशन हुआ, मतलब कितनी परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो हमेशा जो सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन होता है, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर 100% होगा तो उसकी मतलब ये नहीं कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अब जब किसी कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं तो किसी, चाहे कम मात्रा में हो चाहे कम कंसेंट्रेशन में हो, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट तो हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, और वो हमेशा हम जितना यूज होगा उससे थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा ना हो कि कैटलिस्ट कम पड़ जाए। ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं किसी किसी रिएक्शन में जो एक साइकिल तक ही एक्टिव रहते हैं, मतलब अगर एक साइकिल में वो 90% एफिशिएंसी दिए तो सेकेंड साइकिल में उसका 90% एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है, मतलब 30% भी हो जाता है। तो मतलब ये है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट डू चेंज, बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कैटलिस्ट विल नॉट। हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट हमको मिल जाएगा, उसका मतलब जो कंपाउंड दिया है वो ही मिलेगा, लेकिन जितना दिया है क्या उतना मिलेगा? नहीं मिलता कभी भी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Okay, this is the free enzyme, this is the enzyme which took part in the reaction process. So free enzyme is equal to E total minus ES, बस उसी को मैंने चेंज कर दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसी रिएक्शन में तो उससे क्या मिला? उससे मिला के एम इंटू ई एस। तुम कह सकते हो कि एम ऊपर चला गया, इज इक्वल टू ई एस इज इक्वल टू ई टोटल। कभी कभी ये ई टोटल ना ई जीरो भी लिखा हुआ बुक में मिलेगा। ई जीरो मतलब द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम व्हिच वाज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। सो ई जीरो माइनस ई एस मल्टीप्लाइड बाय एस। आगे चलता हूं, तो हमने उसको ऊपर ले इस तरफ से ले आए ये माइनस को। So you will have
Km into concentration of ES plus S into concentration of ES is equal to E total into concentration of S. ठीक है, इससे पहले का रिएक्शन क्या था? इसका पहले से रिएक्शन था Km into ES, है ना, Km into concentration of ES is equal to E0 minus ES into S. E0 और you can calculate the concentration of ES as E total into concentration of S divided by Km plus concentration of S. अब जो equation था पहले, you see the rate determining step, this one, in which the rate is equal to K2 into concentration of ES. यहाँ से तुम्हारी ES की concentration निकल गया, उसको सिर्फ multiply कर दो Km में, that would give you the rate. इसको कहते हैं the equation. ठीक है, the MM equation, Michaelis-Menten equation. इसी के बेसिस पे एक catalyzed reaction which is enzyme catalyzed reaction, उसका rate निकलता है. The rate can be calculated on the basis of that. उसके बाद you see we can calculate the nu max. Nu max is the maximum rate. इसी इक्वेशन में आ जाओ. किसी भी रिएक्शन का रेट कब मैक्सिमम होता है पता है तुमको? किसी भी रिएक्शन का रेट तब मैक्सिमम होता है जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सप्लाई होता है. ठीक है, दैट मीन्स द concentration of S would be maximum. इस इक्वेशन को देखो, अगर ES का concentration maximum हो जाएगा, then Km will be neglected in comparison to the concentration of S because S concentration would be so high. तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे. सो योर न्यू मैक्स को मैं लिख सकता हूं न्यू मैक्स, और न्यू एम कभी कभी कहते हैं उसको, दैट विल बी K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ E0. E0 क्या है? E0 को सॉरी इस यहाँ पे E टोटल लिखा हुआ है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करते हैं. इस कंसेंट्रेशन ऑफ ET, that is the maximum rate. Maximum rate is observed when the concentration of the substrate is maximum. Okay, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं कैसे, तो न्यू जीरो क्या था? न्यू जीरो इज इक्वल टू, दोबारा लिख देता हूं, न्यू जीरो यहां से निकला था. ठीक है, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ET इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ S, न्यू जीरो लिख देता हूं, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ET इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय Km प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ S. यही था, है ना? अब न्यू मैक्स क्या हो गया? इज इक्वल टू K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ET हो गया, क्योंकि हमने कहा कि मैक्सिमम रेट तब निकलेगा जब सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और सब सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा. ये क्या है? एनोटेट का क्या है? ये अप्रूव करूं? आई डोंट नो, बाद में देखेंगे. सो दिस इज द
nu max and nu zero is the rate. So can I write nu max by nu? Nu max by nu लिख सकता हूं? तो ये दोनों कट जाएंगे. मैं लिख देता हूं न्यू इज न्यू बाय न्यू मैक्स. सो न्यू जीरो बाय न्यू मैक्स ये क्या होगा? विल बी कंसंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस. ये इक्वेशन को ध्यान से देखो. ठीक है. अब क्या होगा? at a point where the S concentration will be very high, we got when the concentration of S is very high, we got the nu max. So nu zero divided by nu max is equal to concentration of S divided by concentration of S plus Km. क्या बंद हो गया क्या? नो सर. Okay. Okay. Nu zero is equal to or nu zero by nu max is equal to half. Or nu max will be twice as of nu zero. ठीक है. यस सर. एक इक्वेशन में यहाँ पे नहीं है, मैं तुमको बता देता हूँ एक्चुअल में बताना क्या चाहता हूँ. सो आई कैन राइट न्यू बाय न्यू मैक्स बाय न्यू. क्या निकला हमें? न्यू मैक्स बाय न्यू क्या निकला? इज इक्वल टू Km प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ S. है ना? यही निकला. उसको उल्टा करके मैंने लिख दिया. न्यू बाय न्यू बार लिखा था वहां पे. कहां पे लिखा था? अरे यार, did we stop or what? Are we connected? Yes, sir. Yes, sir. We are Sir. connected. Sir, Yes, screen sir. share नहीं किया. But why my sharing video stopped? You can't see anything, or can you? No, sir. No, sir. we No, can't sir. see anything. पर शेयरिंग वाला नहीं आ रहा है। Actually, सर किसी से दो गलती से प्रेजेंटर बन गया था कोई. नहीं, लेकिन मैंने तो शुरू से कर दिया था कि कोई भी न्यू प्रेजेंटर नहीं बनेगा. पर सर हो गया था एक शायद नोटिफिकेशन आई थी तो अच्छा. इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया. ओके, कोई बात नहीं. हम यहाँ पे थे, है ना? यस सर. तो न्यू मैक्स बाय न्यू इज इक्वल टू Km प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ S. और उसको क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ Km डिवाइडेड बाय Km by nu m into concentration, sorry, 1 by concentration of S plus 1 by nu m. अब देखो,
if I can plot a graph between 1 by nu and 1 by s, between 1 by nu and 1 by s, then I will get km by nu m as a slope and 1 by nu m as an intercept. So I can easily calculate the value of the km and nu m, because nu m कंसेंट्रेशन अगर तुमको पहले से पता होगा, जहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल बी वेरी हाई, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ km. So that is the equation which this is not the equation, this is by the help of which you can calculate the rate of a particular reaction. अगर हम equation derive करना है, then you have to stop here. Where? To stop here. This is called as the equation. ठीक है? ओके सर। बाकी कभी कभी फास्ट ऑर्डर हो जाता है, जैसे कि हमने बोला कि न्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट विल बी वेरी लो, दैट इक्वेशन विल बी fast order because it will only concentrate on the substrate concentration, it will only dependent on the substrate concentration. और अगर S की concentration बहुत ज्यादा हो जाएगा, then it won't be depending on any of the concentration, then the reaction can be of zero order. बुक को और एक बार पढ़ो, फिर भी अगर कोई डाउट है ना मुझसे पूछो, ठीक है? Do you have 5 minutes? I just wanted to discuss one thing. I'm not sure though. Let's see. एक चीज तुम्हारी सिलेबस में है, वो उसको कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. कल कोई क्वेश्चन भी मुझे पूछा था सम ऑफ यू. एक मैकेनिज्म में लिख देता हूँ. ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? ईस्टर हाइड्रोलिसिस, लेट्स स्टार्ट विथ आर सी डबल बॉन्ड ओ O R dash, and if I name it as acid catalyzed. तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और हमें मिलेगा एक अल्कोहल एंड एसिड. तो पहला स्टेप में क्या होता है? H plus comes because if it will be acidic we know that acid gives proton. तो O आके यहाँ पे अटैक करेगा. यहाँ पे अटैक करेगा मतलब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन विल गेट ए पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल गेट ए नेगेटिव चार्ज. सो यू विल हैव OH connected into the, sorry, H will be connected into the O. So you will form RCOH, C plus O and R dash. ये C plus मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिया कार्बन. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक वाटर आएगा, वाटर आके उस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जिसको कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ओके, सो यू विल हैव RCOH OR dash OH plus. ठीक है? उसके बाद क्या होगा? यू विल हैव वन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है? ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा. एंड देन यू विल गेट द R dash OH and plus RCOH double bond O. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर कोई बार बार रिमूव कर रहा है सबको. आपने सर सबको को होस्ट बना दिया. मैंने सबको को होस्ट बना दिया? यस सर.
सर मुझे बार बार अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप मुझे अनम्यूट करना चाह रहे हैं। सर मुझे भी अनम्यूट वाला ऑप्शन सर मेरे में म्यूट मुझे भी अनम्यूटेड का आ रहा है। छोड़ो, एएससी कैटलिस्ट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अब तो टाइम हो गया। ठीक है, बंद करो। पता नहीं, मैंने तो एक मुझे ही सिर्फ होस्ट बनाया था, कैसे हो रहा है आई डोंट नो। एनीवे, ये 2 मिनट की काम है। आई विल टॉक अबाउट दैट वन मोर टाइम, दिस एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, सो गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, ओके सर, थैंक यस यू सर। बाकी Thank you, बाकी sir. किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन आस्क। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सर एक बार। कौन सा वाला बता? सर सेकंड लास्ट, सर ये वाली। यस सर, ये वाली। सर सेकंड लास्ट। ये वाले? नहीं सर, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। ये वाले? हाँ जी सर, ये वाली। हाँ बताओ। नहीं सर, इसका स्क्रीनशॉट लेना था सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, कोई बात हाँ, दोबारा शुरू से लिख दूंगा, कोई इशू नहीं। नहीं। ओके सर, थैंक यू।